Good morning. Good morning. Domain and range of algebraic. Hello. Today we will discuss about the range, domain and range of algebraic function. Earlier, we have learned how to find the domain of an algebraic function, and today we will learn how to find the range of an algebraic function. Okay? So, for finding the range of an algebraic function. What CPU power do you use? Hello, Mohit Anand. Hello. Hello. Respond me. Hello, students. Mohit, Saurabh, Tanya. Is my voice clear to you? Procedure for finding the range of an algebraic function. An algebraic function. First of all, find the range, find the domain of the function. Domain find the minimum value of the function in domain and maximum value of the function in domain of the function. In domain of the function. Okay? Say for example, find the domain and range of the function. Fx is equal to x square plus 4x minus 5. And the domain of the domain and range of the function fx is equal to x square plus 4x plus 5. सर ठीक से दिख नहीं रहा है सर।
Hello? Is the board clearly visible to you, students? No, sir. Hello, respond me. No, sir. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. तुम्हारा नेट स्लो तो नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है ठीक से. हेलो, यहाँ दिख रहा है ठीक से, बड़ा अक्षर भी लिखा हूं मैं. और बड़ा लिखे. हेलो, हेलो, हेलो. Yes, sir. ये बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है. सर दिख रहा है. तो उसका नेट स्लो होगा. ओके, तो ये समझ लो, जो we have to find the domain and the range of algebraic function. In our previous class, I have taught you how to find the domain of an algebraic function, and now you are able to find out the domain of algebraic function. Now, today we will learn how to find the range of an algebraic function. For finding the range of an algebraic function, first of all, we will find the domain of the function and put in the values of the domain. Values of the function, put in the domain of the function in the given function fx, and we will find the minimum and maximum value of the function in the for the function, and that is the range. What is range? Range is the minimum value and maximum value in domain is called of the function in domain. Okay, so here we have given fx is equal to x square plus 4x minus 5, and we have to find the domain and range of the function. Okay, so how will we find the domain of the function? Since fx is defined for all the real values of x, fx is defined for all the real values of x. So domain of the function is set of real number r. Domain of fx is function is r. Now we will find the minimum value and maximum value of the function fx is equal to x square plus 4x minus 5. So here we make it quadratic. 4x square plus 4x plus 4 minus 9. So it is x plus 2 all square minus 9. Hello. Now, what is the minimum value? What is the minimum value of fx? Here, if we put, what is the minimum value of the function fx? What is the minimum value of the function fx? Hello? If we put the value of x, what is the minimum value of the function and what is the maximum value of the function? If we put x is equal to minus 2, fx is equal to 0 square minus 9 is equal to minus 9. And if we increase the value of x towards infinity, the value of fx increases. So therefore, minimum value of fx is minus 9 and maximum value of fx is to infinity. So
range of the function is equal to -9 to infinity. This is the required range. Is it clear? Hello? Is it clear? Respond me. Otherwise, I will think that communication is not good between the students and the teacher here. क्लियर सर। सर एक बार और उसको रिपीट कर दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, देखो हमने फंक्शन लिया है f(x) = x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो x² प्लस 4x माइनस 5 को पहले हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक बना लिया, इसको x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 हम लिख सकते हैं, -5 को 4 माइनस 9। अब देखो x² प्लस 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। यस सर। अब x का कोई भी वैल्यू देंगे, ये -9 से नीचे नहीं जाएगा। x का हम कोई भी वैल्यू देंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन R है, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सभी रियल नंबर पर ये डिफाइंड है। तो हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं x का, तो -9 से नीचे नहीं जाएगा। तो -9 कब होगा? जब x = -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा x = -2, f(x) = 0² -9। तो -9 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -9 when x = -2 and maximum value of f(x) tends to infinity. मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, ये टेंस करेगा इंफिनिटी की ओर। x का जितना बड़ा वैल्यू दोगे उतना बड़ा वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसीलिए रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया -∞ क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाएगा। तो रेंज क्या होता है? मिनिमम वैल्यू, range is the value of x between minimum value and maximum value, ठीक है। तो इसी को हम रेंज कहते हैं। रेंज समझ गए सब? अलजेब्रिक रेंज। अब दूसरा लिखो क्वेश्चन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए। नो सर। दूसरा लिखो। जहाँ नहीं समझोगे वहां आराम से पूछोगे, जो नहीं समझे फिर मैं बताऊंगा। अब लिखो फाइंड द find the range of the function find the range of the function f(x) = (x minus 1). f(x) = (x minus 1). तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे हम, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन याद है ना, x minus 1 is greater than Yes, sir. 0। तो देखिए नंबर लाइन पे हम ले आए इसको -∞ to infinity और x = 1 हमने लिया, ठीक है। ये क्लोज कर देंगे, इससे बड़ा तो ये हो गए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ क्या हो गया? देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? देखिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? कब होगा? जब x - 1 = 0 होगा।
x इक्वल टू 0, 0 से छोटा कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट ये हमेशा x के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। If fx is given under root gx, then gx is defined only when gx is greater than equal than 0। तो ये 0 या बहुत बड़ा x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 से छोटा नहीं होगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन हमको 0 से इंफिनिटी है, सॉरी ये डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 to infinity, क्लोज इंटरवल 1 to infinity। याद रखो x minus 1 is greater than 0, तो 1 से बड़ा इंक्लूडिंग 1। तो यहाँ हम लोकेशन लिखा गया था 0 to infinity, ये 1 to infinity हो गया, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0, कब, जब x इक्वल टू 1 है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलिए। मान लो x का बहुत बड़ा वैल्यू हम लेते जाएंगे 10 to the power 5 minus 1, तो ये इंफिनिटी इससे भी बड़ा हो सकता है, तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी हो, ठीक है। तो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, बोलो रेंज ऑफ द फंक्शन, हेलो, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, हेलो, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना होगा 0 to infinity। हेलो, Yes, sir. रेंज ऑफ द फंक्शन जल्दी बोलो, यदि नहीं समझे तो फिर हम बताएंगे इसमें। हेलो, जल्दी बोलिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन। हेलो, समझ रहे हो इसको, हेलो, ये एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है। ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा कितना, रेंज ऑफ द फंक्शन नहीं समझ रहे हो तुम लोग, हेलो, हेलो आदित्य, आदित्य अनुराग, हेलो, यस सर। ये सुन रहे हो, यस। हाँ तो डोमेन बताओ, अरेंज बताओ इस काम को। डोमेन कितना होगा 1 to infinity होगा, और यदि x इक्वल टू 1 रखेंगे हम तो fx मतलब y का वैल्यू कितना होगा 0 से इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया 0 to infinity। रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा कितना 0 to infinity, ठीक है। दूसरा मेथड देखो इसका, ये दूसरा मेथड है fx को तुरंत y में चेंज कर दो, y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू
y स्क्वायर प्लस 1। अब y का कोई भी वैल्यू हम लेंगे, कोई भी y क्या है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये 1 से शुरू होगा और इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी। ये समझ गए सर? फिर से समझा दीजिए सर इसको। हाँ, पहला जो तरीका मैंने बताया आपको कि पहले हमने डोमेन निकाला, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि f को तुरंत y में चेंज कर दो, तो y √x - 1 हो गया। अब x को इंडिपेंडेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों तरफ स्क्वायर करके हमने x - 1 = y स्क्वायर निकाला। अब x = y स्क्वायर प्लस 1, तो y के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है? सभी वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू r के लिए x डिफाइंड है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? जब y = 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू x का हो जाएगा 1। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू y जितना बढ़ाते जाएंगे उससे एक बढ़ते जाएगा तो इंफिनिटी। ठीक है ना, तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना यस सर, 1 टू इंफिनिटी, क्लोज 1 इंटरवल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी। समझ गए इसको? यस चलो दूसरा एग्जांपल, यस सर नहीं समझे तो फिर मैं बताऊंगा, मेरे पास बहुत सा टेक्निक है, ग्राफ से भी बनता है ये, समझे? मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए। अब देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y = mod x - 1। इसका देखो, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा? सेट ऑफ रियल नंबर r। इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा? सेट ऑफ रियल नंबर, ये r होगा। r सभी x के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर r। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मॉड में है तो कोई भी नंबर रखेंगे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x = यदि 1 रखोगे, x = 1 तो y = 0 हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, समझ Yes, रहे sir. हैं इसको? यस सर, तो इसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर r, मतलब -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब देखिए x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लो -5 हमने रखा, तो mod -5 - 1 = mod -6 = 6 होता है, पॉजिटिव हो गया। तो मिनिमम कितना वैल्यू होगा? y का कौन सा वैल्यू मिनिमम होगा? बताओ जल्दी। 0 0। फिर 0 होगा ना? तो x यदि 1 हम लेते हैं तो y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। y का मिनिमम वैल्यू होगा 0। अब देखो, मिनिमम वैल्यू y = 0 कब? व्हेन x = 1, और मैक्सिमम वैल्यू y = मान लो Infinity. लगभग इंफिनिटी पे हम जितना बढ़ेंगे 100 - 1 ये 99 हो जाएगा। y = 10 100 to the power 100 - 1, ये उससे ये कम होगा, ये भी 10 to इंफिनिटी की ओर बढ़ते जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया 0 to इंफिनिटी। क्या हो जाएगा? 0 to इंफिनिटी। इसको समझ गए सर? हेलो, बोल नहीं रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसी में एक और क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन
fx is equal to minus mod x minus 1. अब जल्दी बोलो इसका। सोच समझ के बोलना। मिनिमम वैल्यू इसका डोमेन पहले कितना होगा? ये भी सेट ऑफ रियल नंबर आर होगा, क्योंकि x का कोई भी रियल वैल्यू हम रखते हैं तो fx डिफाइंड है। fx का कोई भी रियल वैल्यू हम रखते हैं तो ये डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए x का कौन सा वैल्यू रखेंगे हम कि ये, अब देखो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx infinity 0 when x इक्वल टू 1 रखेंगे, क्योंकि निगेटिव है। हम x का कोई भी वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो निगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट 0। जब x माइनस 1 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 0 और मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस इंफिनिटी। द रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0। मिल गया ये। समझ गए इसको? ये समझे कि नहीं ठीक है? हमने फिर से बता दिए सर इसको। क्या बोलो, फिर से बताते हैं। यस सर। हेलो, 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 respond me. Then I will Yes, see sir. that you are following me. यदि कोई शक शुबा है तो बोलो आराम से, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों एग्जांपल से समझ गए हो ना ठीक से? आगे बढ़ूं मैं तब? अब देखो, इसी में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to 1 plus mod x minus 1। अब बताओ इसका हमको डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन जब हम समझेंगे, तुम लोग समझ गए हो। सर डोमेन आर होगा। ये बड़ा लिख दें थोड़ा। देखो fx equal to 1 plus mod x minus 1। What is the domain of the function and what is the range of the function? बोलो, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा? ये तुमको निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ। x के किसी भी वैल्यू के लिए fx डिफाइंड होना है, तो इसीलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर r और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हेलो, डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका समझ गए? यस सर। डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर r और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, अब देखो रेंज कहां से कहां तक जाएगा? x का कोई भी वैल्यू 1 to infinity। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा बोलो? मिनिमम वैल्यू इसमें कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। कौन बोल रहे हो? जल्दी बोलो। व्हाट इज योर गुड नेम? आयुष सर, आयुष कुमार। हेलो, ये मिनिमम वैल्यू 1 होगा कब? जब x इक्वल टू 1 होगा तब। और मैक्सिमम वैल्यू
इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया? 1 to इंफिनिटी। हेलो, समझ गए इसको? यस सर। रेंज समझ गए? आप नेक्स्ट लिखो। ये निकाल के अलजेब्रिक आप बना लोगे ना, डोमेन और रेंज। आप देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में रेंज निकालने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। और डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है उससे x का वैल्यू हम पुट करते हैं और y का जो मिनिमम वैल्यू मिलता है और y का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है उसको हम क्या करेंगे? रेंज में रखेंगे। रेंज क्या होता है? मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको हम रेंज करते हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखो, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेंज हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन बता देते हैं। लिखो तो टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन fx इक्वल टू c constant is called a constant function। constant function। अब देखो domain of the function fx ये r2 हम लिए एक, ठीक है। फंक्शन r2 c, इसमें कोई भी रियल नंबर हम लेंगे 1 -1 2 2 3 एक्सेट्रा, ये सब किससे जुड़ जाएगा? हम कुछ भी रखेंगे x का वैल्यू वो ये c से ही जुड़ जाएगा, समझे? वो ऐसा वैल्यू नहीं बचेगा जो इसका एलिमेंट इसका डोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो, ठीक है, वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन fx इक्वल टू c इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ क्या हो गया? r, क्योंकि सभी रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है। x का कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके लिए ये डिफाइंड है, मतलब 1/0 के फॉर्म में नहीं है, 2/0 के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में नहीं है, 0/0 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए डिफाइंड है। इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका हो गया r और रेंज ऑफ द फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? सिंगलटन से फुल only one element is c। रेंज ऑफ द फंक्शन समझ गए इसको? हेलो, रेंज फिर से बता दीजिए सर। अच्छा, ये देखो कांस्टेंट फंक्शन है। तो फंक्शन हम कहते हैं तो एक सेट लिए सेट ऑफ रियल नंबर r और दूसरा सेट लिए जिसका एक ही एलिमेंट है c, ठीक है। तो सभी रियल वैल्यूज के लिए
fx डिफाइंड है। रियल वैल्यूज मतलब क्या? रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सभी सेट ऑफ रियल नंबर के लिए fx इक्वल टू c डिफाइंड है। मतलब x का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो ये हमको c से ही जाके, ठीक है, रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो डिफिनीशन के हिसाब से ये फंक्शन है, क्योंकि सेट R के प्रत्येक एलिमेंट से C जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब डोमेन इसका देख रहे हैं, डोमेन ऑब्वियस है, सेट ऑफ रियल नंबर R। और रेंज का हमने डिफिनीशन दिया था, जो सेट ऑफ इमेजेस कंटेंट इन कोडोमेन, वो इमेज एक ही है यहाँ पे C, तो इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया C। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए, नो सर। ये समझ गए इसको सब? हेलो, यस सर। अब लिखो आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड, आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। ये फंक्शन fx is equal to x is called an identity function और x belongs to set of real number R। x belongs to set of real number R। अब देखिए यहाँ ये भी R है और ये भी R। फंक्शन R to R, 1 2 -1 2 -2 3 1 2 -1 -2, ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन fx इक्वल टू x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन और x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर R। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर R। दोनों हो जाएगा, डोमेन और रेंज दोनों सेम हो। तो हियर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर R and range of the function is also set of real number R। ठीक है, आइडेंटिटी Yes, sir. फंक्शन समझ गए? ठीक है, अब देखिए, यस सर। अब सिग्नम फंक्शन सुने हो? सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन नहीं सुने हो? स्टेप फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, अब लिखो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मिटा दे इसको। मॉडुलस फंक्शन, अब लिखिए फंक्शन, ये फंक्शन fx is equal to mod x is called ये मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन f is equal to R होगा, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन f सभी पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? 0 to infinity, 0 to infinity। अब इसका देख लीजिए, ये सेट ऑफ रियल नंबर R है, लेकिन ये
सिर्फ पॉजिटिव 0 1 1/2 3, ठीक है, ये हो जाएगा सेट। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इसका हो गया कितना 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। इंक्लूडिंग 0, ये भी सेट ही लेंगे, आर ही लेंगे, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। लेकिन इसमें सब पॉजिटिव, निगेटिव नंबर कोई भी नहीं आ जाएगा। निगेटिव नंबर कोई इमेज नहीं हुआ किसी एलिमेंट